मेंटेन होती है। ओके, सो फेडरलिज्म में आपने जब पढ़ा तो यू केम अक्रॉस 7 टाइप ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। और उसमें जब सातवें में जब 7th आपने पढ़ा तो इसमें आपने पढ़ा कि 7th वन इज व्हाट, 7th वन में डुअल ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा था, करेक्ट है? डुअल ऑब्जेक्टिव में 2 ऑब्जेक्टिव थे, कौन कौन से हैं? सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज रीजनल डाइवर्सिटी। अब एग्जांपल ले लो, केस ऑफ इंडिया। सो इन इंडिया यू विल फाइंड डिफरेंट रीजन, पीपल आर लिविंग इन डिफरेंट रीजन, ठीक है, एंड डिफरेंट रीजन दे हैव डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशन, ठीक है। तो बाय मीन ऑफ फेडरलिज्म what we are doing, we are trying to accommodate. Federalism is actually what, a kind of power sharing, पावर शेयरिंग ही है, जिसकी वजह से ये रीजन एक साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। अदरवाइज दे विल हैव अ फीलिंग ऑफ एलिनेशन और काइंड ऑफ अ रिसेंटमेंट। समझ में आ रहा है? यस सर, आप रीजनल डाइवर्सिटी नहीं रह पाएगी। यस। एनी अदर डाउट? Do anybody have any other doubt apart from this? No, sir. Shall I ask you questions? Will you be able to answer that? Yes, Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डीपीपी में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? For sure? No, sir. No, sir. Okay, good. तो सौम्या आहूजा, Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। यू हैव गॉन थ्रू फेडरलिज्म? Yes, sir. लेकिन सर डीपीपी में कुछ ओपनिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने चंद्रा मैम को कंप्लेंट कर दिया, तो डीपीपी अभी मैंने सॉल्व नहीं करी। वैसे सर आई हैव गॉन थ्रू द चैप्टर। Okay, so make sure that your DPP works and you go through the DPP. ठीक है, DPP Yes, is sir. important. Okay, Okay, sir. so I taught you federalism in previous chapter, in previous class. Yes, sir. So federalism में I told you about 7 features. Yes, sir. Can you explain that features? Okay, sir. Sir, first, there are two or more levels or tiers of government. Second, all the tiers of government govern the same citizens, but the jurisdiction is different in specific matters of legislation, administration, and taxation. Third, Okay. Constitution. Yes, sir. Yes, continue. The the jurisdiction of all the governments are clearly specified in the constitution, and are clearly specified in the constitution, and the authority and the existence of all the government of all the levels of the government are constitutionally guaranteed. Fourth, courts have the power to interpret the constitution as well as the powers of different level of government. In case of any dispute, the highest court in the country can act as an umpire and solve the dispute and take the decision on solving the disputes if there is any problem on exercise of the authority. Fifth, Okay, the sources of Soumya, yes, sir. give me an example of coming Yeah. together federation. The USA, Switzerland, Australia coming together. Yes, sir. Switzerland or Spain? Are you sure? Sir, Switzerland and Australia. Okay, Spain is in holding together. Yes, sir. Holding Sure. together. Yes, sir. Okay, good, Soumya. Thank you. Next, Aditya Verma. Yes, sir. Aditya, tell me about holding together federation. So holding together federation, that the country divided the power between the constituent states and the national government. Example, Spain, Belgium, and India. So in holding together federation, it is said that state have more power than central government. No, sir. No, sir. Central government has more power than the state government. Central government has
More power than the state More government. power. Yes, sir. Okay. Good, Aditya. Vaibhav. Thank you, sir. Yes, sir. Vaibhav, which Vaibhav is this? Sir, Vaibhav Vishal Jha. Not Vaibhav Vishal Jha. It's Vaibhav Kathet 10th B 44. Yes, sir. Am I audible to you? Yes, sir. So, what do you think? India is a federal country. Sir, Do can you we repeat? practice federalism? Sir, we practice. Sir, we do not practice federalism completely. Okay. But Vaibhav, let me tell you that you will answer whatever has been taught to you by NCRT. Means whatever written in NCRT, you have to strictly follow that. As per the NCRT, give me answer. Sir, yes, we are a federal country. The word federation has not been mentioned in our constitution, though we practiced federalism. The Federalism. principle of federalism are practiced over here. Is it clear? Yes, sir. So constitution defines India as a Article 1 क्या? Sir, Sir? can I? Union of Territory. वैभव जिससे मैंने पूछा है वही आंसर दें, बीच में आप कोई अनम्यूट ना करिए अपने को, सिर्फ वैभव Second आंसर repeat. देगा। बताइए वैभव। 10B44। Yes, sir. हाँ आंसर दीजिए। Sir, can you repeat the question? I told you that as per the constitution, India is a India is India. union of dash. Union of States. बहुत लेट आंसर कर रहे हो, ठीक है चलो ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलो एज पर द शेड्यूल 7 क्या पढ़ा था हम लोगों ने शेड्यूल 7 में? Sir, may I tell? वैभव नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से पढ़ के आएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Sir, can I tell? वेट, जिससे मैं पूछूं वही आंसर करें। Where is Ananya? Ananya, can you hear me? Okay. Kashish Badola. Am I audible to all? मेरी आवाज सभी को आ रही है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kashish Badola. So she is not hearing. Okay. एकेडमिक डिपार्टमेंट से कौन है यहाँ पे? यमुना विहार एकेडमिक। हर्ष सर। ओके। मानस मिश्रा। Yes, sir. Am I visible? Am I audible to you? Yes, sir. Okay, so Manas, tell me that what is Schedule 7? What do you studied about Schedule 7? Schedule 7 के बारे में आपने क्या पढ़ा है? Schedule 7 के बारे में क्या पढ़ा है आपने? Sir, नहीं पता। यूनियन लिस्ट के बारे में क्या जानते हो? सर यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट आते हैं नेशनल इम्पोर्टेंस, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सर ये सब।
Hello, sir. सर आप म्यूट हो चुके हो। Okay, now I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Aryan Tyagi. सर Aryan Tyagi, banking and communication come under which list? सर यूनियन लिस्ट। और trade union सर कॉन्करेंट लिस्ट। और trade? सर ट्रेड कम्स इन स्टेट लिस्ट। Okay, Aman Goyal, good. Aman Goyal. सर व्हाट? Aman Goyal, can you hear me? Yes, sir. Tell me about what is the state list? Tell me about the state list. State list is a subjects of local and state importance. Okay, trade union comes under state list. Is it correct? Sir, trade, yes, sir. Sir, trade union comes in concurrent list. Okay, trade union comes in concurrent list. This is what you are saying? Yes. Yes, sir. Trade comes under concurrent list. This is what you are saying? नहीं सर, ट्रेड स्टेट लिस्ट में आता है और ट्रेड यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। Good, Aman. Ashmit Manak. यस सर। If suppose state list or if suppose concurrent list में state government और central government law बनाते हैं, okay, and there is a conflict, तो किसके जो है law prevail करेंगे? सर सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ प्रिवेल करेंगे? यस सर, इंडिया में वही सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से। ओके, तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? ओरिजिनली देखा जाए तो यूनियन लिस्ट में कितने आइटम्स हैं? सर यूनियन लिस्ट में है, देख के नहीं बताना है। यस सर, याद है 97 थे और अब 100 हो गए। ओके, ओरिजिनली अगर पूछा जाए तो 97 ही बोलना है। यस सर। ओके, ओके सर। उत्कर्ष कुमार 10C। यस सर। आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा है? नो सर। उत्कर्ष आप बताइए, कंकरेंट लिस्ट में जो है कितने आइटम थे ओरिजिनली? सर ये याद नहीं है मुझे। क्यों? चलो कोई बात नहीं, याद नहीं कर पाया। याद कर लेना इसको, ये एनटीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? ओके सर। ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है? सर जुरिसडिक्शन का मतलब है कि सर जो स्टेट्स और जो सेंटर होते हैं उनके पास जुडिशरी है जो सब चेक रखते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, मतलब एरिया पे एक चेक रखते हैं। Are you sure that whatever you are answering is correct? सर एरिया पे चेक रखते हैं। अब एरिया पे कैसे चेक रखेंगे? चलो अगली बार अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? ओके सर। शुभर्षि पाल। शुभर्षि Yes, पाल, sir. Yes, sir. आप आंसर कर सकती हैं? Yes, sir. बताइए Sir, can you please? jurisdiction के बारे में। Sir, jurisdiction means the area over which someone has legal authority. Very good. और how many items are there in state list originally? It's 66 subjects. Okay, under which constitutional amendment? 42nd, 1976. Okay, means आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। Good. Sir, I have just read it. आपने जस्ट लिखा है अभी। Okay. Can you give one difference between unitary and federal government?
Sir, in unitary government, there is only one tier of government, or if there are more, then the lower tiers are subordinate to the central government. And in federal government, there are two or more tiers of government, and the state or other units are not subordinate to the central government. चलिए गुड। बाकी लोग प्रिपेयर करते रहिए। आप लोगों के आई थिंक यूनिट टेस्ट भी आ रहे होंगे, isn't it? स्कूल में यूनिट टेस्ट भी शुरू होने वाला होगा या कुछ लोगों के हो भी रहे होंगे, ठीक है? तो make sure that you all are preparing yourself for that. Okay? नो सर अभी स्टार्ट नहीं हुई, हमारे तो पता भी नहीं। हाँ, तो कुछ बच्चों के शायद स्टार्ट हो गए हैं। सर मेरा कल एसएसटी का पेपर है। कल सर मेरा कल साइंस का पेपर है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए, नाउ वी विल मूव टू आवर टॉपिक फेडरलिज्म। ओके, सो इन फेडरलिज्म आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हेन पावर फ्रॉम सेंट्रल यूनिट हैज बीन गिवन टू कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ओके, देन वी कॉल दैट अ फेडरल स्ट्रक्चर और वी कॉल इट अ फेडरलिज्म। ठीक है, और फेडरलिज्म में जो ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है फेडरलिज्म, इसमें हमने ये देखा कि अगर कोई कंट्री क्लेम करती है दैट इट्स अ फेडरल कंट्री, दैट इट मस्ट फॉलो 7 फीचर्स। बताया था मैंने, पहला फीचर 2 और मोर टीयर ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से सुनो, देखो मैं एक ऑर्डर में बताऊंगा और इसको ध्यान से समझो। 2 और मोर टीयर ऑफ गवर्नमेंट, हर टीयर का क्या है अपना ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट या एपेक्स कोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली डिफाइंड होते हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है इनकी अपनी। ओके, और उसके बाद फेडरलिज्म का डुअल ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। क्या मैंने 7 पॉइंट बता दिए? No, sir. The fundamental provision of the Constitution. इसमें ये एक बीच में रुक गया। फंडामेंटल जो प्रोविजन है, ओके, इसमें फंडामेंटल प्रोविजन जो है, अगर कोई टीयर ऑफ गवर्नमेंट चाहे कि यूनिलेटरली चेंज कर दें तो वो नहीं कर सकता। दोनों टीयर ऑफ गवर्नमेंट को क्या करना होगा? उसको चेंज करना। ठीक है, कंसेंट दोनों टीयर ऑफ गवर्नमेंट का लेना होगा। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर दें, चलो एक बार फिर से सुन लो। 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट विल हैव डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन क्लियरली कहां मेंशन होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में। और उस ज्यूरिसडिक्शन में अगर ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ओके, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिजॉल्व करेगा, या एपेक्स कोर्ट कह लो, विल एक्ट एज एन अंपायर। और फंडामेंटल प्रोविजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने हैं तो वो यूनिलैटरली नहीं किया जा सकता। इज इट क्लियर? वो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जो है कि कंसेंट से ही चेंज होगा। और सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू उनके क्लियरली मेंशन होते हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, और डुअल ऑब्जेक्टिव है, यूनिटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज अकोमोडेट डाइवर्सिटी। अब समझ में आया? Yes, sir. किसी को डाउट है? तो No, इस sir. फीचर्स को, ये जो 7 फीचर्स हैं, इसी को क्या करना है आपको? एक ऑर्डर में याद रखना है। आपको लग रहा था कि मैं एक ऑर्डर में सारी बातें बोल रहा हूँ, एक बात दूसरी बात से रिलेटेड है? Yes, sir. हाँ, तो I have remembered it. हाँ, तो इसको इसी तरीके से रिमेंबर रखना। चलो नेक्स्ट हम लोगों ने कहाँ लेफ्ट किया था? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बता दिया था मैंने। Yes, sir. Northeastern Yes, region, sir. Right to property, sir. राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह बता दिया था। ओके, अब हमने देखा था जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं इन इंडिया। Some states have special provisions. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख रही है? अरे पिन सर स्क्रीन दिख रही है। नो सर विजिबल। सर उन्होंने दूसरी आईडी से आपको पिन कर। देख लीजिए उसको कैसे करना है। जिसमें प्रेजेंटेशन हो रहा है जिस स्क्रीन पे, उस पे पिन करिए। इन इंडिया सम स्टेट्स हैव स्पेशल प्रोविजंस। अब हालांकि आज के डेट में नहीं है, बट इफ इट इज रिटन इन योर बुकलेट यू शुड मेंशन इट। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, बताया मैंने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आप लोगों को।
आर्टिकल Article 370. 370 एंड 35 है। आई थिंक ये डिस्कस हो चुका था पिछले क्लास में। Yes. Yes. Yes, sir. अब ये हटा दिया गया है 2, ठीक है, फिर भी कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। इनके पास क्या था अर्लियर? सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। क्या था? सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। अभी अगर फिलहाल में पूछा जाए कि कौन से जगह स्पेशल प्रोविजन स्टिल एग्जिस्ट, देन यू विल आंसर नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द कंट्री, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड ऑल, नागालैंड, ठीक है। आर्टिकल 371, ये भी मैंने कुछ डिस्कस किया होगा इसके बारे में। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इससे ज्यादा इसमें नहीं बताना है आपको, ठीक है, और आपके सिलेबस में भी मेंशन नहीं है। ओके ओके, स्पेशल प्रोविजन के बारे में कौन से पार्ट में दिया हुआ है? पार्ट 21। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के हिसाब से देखें तो पार्ट 21। इफ सपोज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, आप क्या करेंगे? पार्ट 21, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका यूटीज के बारे में। किसके बारे में? यूटीज। यूटीज को क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज डू वी हैव राइट नाउ? 9 union territory. 9. 9 सर 21 जनवरी के बाद 8 हो गई थी। 8 सर 9। देखो मैंने क्या लिखा है। सर दमन एंड दीव और दादर नगर हवेलीज मिल गई। दमन एंड दीव, ओके, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, नाम सुना है ना? यस सर। दादर पहले तो 7 यस सर। Yes, sir. इन दोनों को जोड़ के एक ही यूटी बना दिया गया। दे हैव बीन मर्ज्ड, मींस अब एक ही यूनिट है। कब? आई कब हुआ थिंक है? ये जनवरी में हुआ है, अब इफेक्ट में आया है। 26 जनवरी। एक बार आप इसको क्या करेंगे देखेंगे, हो सकता है आपके एनटीएससी में पूछ ले, एक आध जीके का भी आ जाए। सो करेंटली वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो अब यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम देखें तो व्हाट वी नो अबाउट यूनियन टेरिटरीज, कोई बता सकता है? एनीथिंग? डू एनीबॉडी हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया? Sir, the state controlled and central controlled territories are known as union territories. Sir, the state does not control them. Sir, They are controlled by the union. Delhi का control है state का। चलो ठीक है। यूनियन टेरिटरीज मतलब वो टेरिटरीज विच कम्स अंडर यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, इसीलिए नाम तो देखो पहले, यूनियन टेरिटरीज। तो स्टेट कैसे आएगा? नाम दिख रहा है यूनियन। Yes, sir. सर लेकिन दिल्ली में तो सर चीफ मिनिस्टर होता है सर। अब दिल्ली और पुडुचेरी, NCT. ओके, और जम्मू एंड कश्मीर, अब रिसेंट का है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे? आपके सीएम होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। पर्टिकुलरली दिल्ली में देखें तो आप देखोगे यूटीज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? दिल्ली में। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, आर्टिकल, हालांकि अब तुमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी 239, ठीक है, 239 ए के हिसाब से दिल्ली के पास क्या है? दिल्ली में क्या होता है? लेजिस्लेटिव, दिल्ली के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, ओके, और दिल्ली के पास कई सारे पावर हैं। स्टेट लिस्ट के सारे, am I audible to all? Yes, sir. स्टेट लिस्ट के सारे प्रोविजंस को दिल्ली क्या कर सकती है? एग्जीक्यूट कर सकती है, बट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? पुलिस और एजुकेशन। दिल्ली पुलिस, ओके, या पुलिस सिर्फ लिख लो। पब्लिक ऑर्डर, दिल्ली पुलिस और लैंड, ये इनके हाथ में नहीं आए। किसके? दिल्ली गवर्नमेंट के पास, ठीक है। ये किसके हाथ में होगा? यूनियन गवर्नमेंट के पास। सर पब्लिक ऑर्डर मतलब? हाँ सर पब्लिक ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर मींस लॉ एंड ऑर्डर हियर। हालांकि ये सब तो फिर
एलजी के पास क्या होता है पावर? एलजी हेल्प, एलजी क्या करता है, ये सारे पावर एक्सरसाइज करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से आप समझ लो, इन वन वे और द अदर यू कैन से दैट इट एलजी हेल्प्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन ओवरऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओवरऑल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एलजी। सर व्हाट इज है एलजी? यहाँ पे एलजी इस समय? अनिल बैजल। सर एलजी कौन है, लिख कौन दिया क्या मैंने। होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, यूटीज में कौन होते हैं, एलजी होते हैं। ओके, ये जो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करते हैं ओवरऑल यूटीज को रन करने में। ओके, आपने गवर्नर के बारे में सुना होगा, गवर्नर जैसे पूरे इंडिया के लेवल पे कौन होता है, प्रेसिडेंट, स्टेट के लेवल पे कौन होता है, गवर्नर। समझ में आ रहा है? हेड ऑफ द स्टेट इन अ पर्टिकुलर स्टेट इज गवर्नर, और इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट्स ओवरऑल कौन है, प्रेसिडेंट। पढ़ा है 9th में? यस सर। हाँ, तो इसको इस तरीके से समझो। अब प्रेसिडेंट किस को जो है कौन हेल्प करता है, कौन एडवाइस करता है, बता सकते हो? सर प्राइम मिनिस्टर। सर नरेंद्र मोदी। ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो। प्राइम मिनिस्टर। assemblies. यूनियन गवर्नमेंट कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई हियर आई टोल्ड यू यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा डायरेक्ट बोल दिया था, बट एक ऑर्डर ये है। इज दैट क्लियर? चलो, ये सब पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल यू शुड नो। सो इफ समवन आस्क यू कि दैट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय यूटी, देन व्हाट यू विल आंसर? दे हैव वेरी, राइट इट डाउन, नॉट दे, ओके। यूटीज एंजॉय, मेरी राइटिंग थोड़ी आज एडजस्ट कर लेना, ओके। सभी को राइटिंग समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस, यूटी एंजॉयज वेरी लिटिल पावर, ठीक है। एरिया टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। अभी यूटी बनाने की जरूरत क्या है? द एरियाज आर टू स्मॉल, ठीक है, टू बिकम एन गोवा जो है वो लद्दाख से छोटा है। टू बिकम सर and write it down first, then I will answer your query. To become an independent state, यही लिखना है आपको आपके एग्जाम में। and could not be merged and could not be merged with any state। बताओ क्या करें? मर्ज क्यों नहीं किया जा सकता? मर्ज करोगे, देखो सपोज फॉर एन एग्जांपल ये कोई स्टेट है, टेक दिस एज एन एग्जांपल, XYZ कोई स्टेट है, इनका स्टेट अपना खुद इतना बड़ा है, उसमें आप इनको कह दो कि नहीं, अब आप क्या करिए, एक यूटी को भी मर्ज कर लीजिए, ठीक है। तो यूटी के मर्ज करने में क्या होगा कि यहाँ की पॉपुलेशन यहाँ भी आएगी, यहाँ भी जाएगी, ओके। और ये ओवरऑल जो यहाँ का सीएम है, उनके ऊपर क्या है, ओवरऑल एक उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है, रेस्पॉन्सिवनेस है। यहाँ के लोगों को क्या करना है, डेवलप करना है। पता लगा एक और यूटी जुड़ गए तो एरिया एक्सपैंड तो हुआ, बट उसके साथ साथ पीपल भी यहाँ से यहाँ रिसाइड करेंगे, प्लस उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखो तो इनको क्या करने होंगे, इनको हाई कोर्ट्स बनाने होंगे, इनको पुलिस हायर करनी होगी, समझ में आ रहा है? ओवरऑल खर्चे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इनको अपना पहले संभालना है, ठीक है। यूटीज है, छोटा है, और ये भी नहीं है बहुत बड़ा है, बहुत सारे रिसोर्सेज इनको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और ये मिल गया और जो है कि मिल जाएगा और ये जो है कि नाम नकार रहे हैं इसे। अगर रिसोर्सेज बहुत सारे होंगे तो ऑब्वियसली स्टेट विल वांट टू इनकॉर्पोरेट इट अंडर इट, ठीक है। देखेंगे इसके पास रिसोर्स भी ज्यादा नहीं है, लोग भी ज्यादा रह रहे हैं, तो हमारा अपना जो है पहले हम सर 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 मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये जो आपने लिखा है, बोलिए सर। हाँ बोलिए सर गोवा जो है वो लद्दाख से छोटा है। क्या?
सर दिल्ली में ह्यूमन सर रिसोर्स तो गोवा बहुत जो है वो ज्यादा है। लद्दाख से छोटा है, पर गोवा स्टेट और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। गोवा यूनियन टेरिटरी है? नो सर, गोवा स्टेट है पर वो छोटी है लद्दाख से, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख लद्दाख यूनियन स्टेट। टेरिटरी है। लद्दाख के केस अलग है और गोवा का केस अलग है। गोवा पहले यूटी थी, फिर बाद में स्टेट बन गई। ओके। और लद्दाख के केस ऐसा में क्या है? हाँ, लद्दाख के केस में क्या है कि यहाँ पे तो कन्फ्लिक्टेड एरिया है। इनको क्या था, जम्मू एंड कश्मीर में जब स्पेशल प्रोविजन था तो ये वाला एरिया पर्टिकुलरली क्या था, कन्फ्लिक्टेड जोन था। ये वाले एरिया पीस एंड स्टेबिलिटी थी। ये चाहते थे पहले से कि दे वांट टू बिकम अ यूनियन टेरिटरी। दे डिमांडेड hundred of times that they want to become a union territory. They don't want to remain in Jammu and Kashmir. Okay, that's why that means it had been created into union territory. और यहाँ पे भी देखो तो ये एरिया किसमें है, अक्साई चीन में है, चाइना के पास। समझ में आ रहा है सर? हाँ सर दिल्ली में तो काफी ह्यूमन रिसोर्स है, तो फिर उसे क्यों नहीं मर्ज करते? अच्छा ठीक है, मैं आंसर कर रहा हूँ। ये सभी ने लिख लिया है? शैल आई रब दिस? यस सर। यस सर। किसी का रह तो नहीं रहा? Yes, sir. ओके, आप लोग साइड बाय साइड नोट्स भी बना रहे हैं? यस सर। यस सर। हाँ, सभी के नोट्स बनने चाहिए। Yes. चलो नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा आपने, दिल्ली को क्यों स्टेट नहीं बनाया जा रहा है? सो दिल्ली में अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल है इंडिया की वो क्या है, दिल्ली। दिल्ली में क्या क्या है? दिल्ली में पार्लियामेंट है। दिल्ली में और क्या है? जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट यही है ना? बताओ। जितने भी वीवीआईपी हैं, जितने भी वीवीआईपी हैं वो कहाँ है? दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन पार्लियामेंट में हालांकि आ गया, ठीक है। तो ये सब जो ये लोग हैं, दे विल नेवर वांट टू कम अंडर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अगर अंदर आ जाएंगे तो इनके जो है ओवरऑल मूवमेंट पे ये क्या लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? दे विल नेवर वांट टू कम अंडर दिस स्टेट गवर्नमेंट। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। स्टेट जो है कि दिल्ली सरकार क्या चाहती है कि स्टेट बन जाए, और ये कहते हैं कि कैसे आप स्टेट बना सकते हो, दिस इज द कैपिटल। ओके, एंड दिस इज द कैपिटल एंड वीवीआईपी, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट एंड ऑल, ठीक है, कम्स सेट हियर इन दिल्ली। ओके, तो इनके पावर क्या होंगे, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो सकते हैं अंडर स्टेट गवर्नमेंट। चलो, इज दैट क्लियर? सर ये वीवीआईपी मतलब? वीवीआईपी मतलब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ओके, सीजीआई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इसको फुल फॉर्म कह लो। सर चलो, यस। सर ये इंडिया में जिसका मैप देखते हो तो वहाँ पे 400 जगह पौंडीचेरी पुडुचेरी बना होता है, तो वो चारों यूनियन टेरिटरी है, वो एक ही चीज है? एक ही यूनियन टेरिटरी है। मैंने सर 9th में बताया होगा। सर मैं 9th में था नहीं। हाँ बताइए, क्या क्या क्वेश्चन क्या उसमें? सर मेरे को ये पूछना है कि इंडिया के मैप पे अगर हम साउथ में देखें तो 2-3 जगह पौंडीचेरी के दिखते हैं लोकेशंस, तो इतना अलग अलग क्यों है, वो एक ही जगह क्यों नहीं रखा? अच्छा, सौम्या आहूजा विल आंसर दिस। Yes, sir. मेरे आंसर को क्वेश्चन समझ नहीं आया। उसने कहा कि इन्होंने कहा कि हियर, ठीक है, पौंडीचेरी यहाँ है, कराईकाल, माहे, ये सब क्यों है? ये चारों एक ही हैं या अलग अलग हैं? पढ़ा है? पता नहीं सर, याद नहीं। किसको याद है? सर मुझे, सर सारे पौंडीचेरी हैं। सारे पौंडीचेरी हैं। वो बच्चा कहाँ है जो राइजर में है, क्या नाम है, वीकेंड बैच में, लक्ष्मी नगर, जिसके फुल मार्क्स आते हैं सोशल में? नाम मैं भूल रहा हूँ इस समय। सर आदित्य वर्मा। हाँ सर आदित्य वर्मा, जो गाजियाबाद से आता है। हाँ सर, नहीं सर वसुंधरा। हाँ वसुंधरा, जिसमें जो यूपी में एनटीएससी यूपी का है, जिसको जो बच्चा, क्या नाम है उसका? हाँ हाँ सर, आदित्य वर्मा है। आदित्य, आंसर करो। यस सर। आंसर करो इसको।
सर मुझे याद तो वैसे नहीं आया, लेकिन यही होगा कि सारे पौंडीचेरी में ही है। सारे पौंडीचेरी में ही है। ओके, किन्होंने आंसर पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था ये? सर मैंने। हाँ, ये एक्चुअली पौंडीचेरी में ही है। आप देखोगे कि तमिलनाडु में वो फाइंड होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे केरल में है, तो वो सारे पौंडीचेरी ही हैं। स्मॉलर यूनिट्स है, एक ही यूनिट उसको बनाया गया है और पुडुचेरी कहते हैं उसको। तो सर वहाँ पे सारे लोग अलग अलग से हैं जो इतनी दूर दूर रखे हैं पौंडीचेरी? क्या सर वो जितने भी 4 लोग पुडुचेरीज हैं उन सबके लोग एक तरह के ही हैं, और जो इतने दूर दूर रहते हैं इसलिए उनको अलग अलग जगह पे बांट दिया? नहीं, लैंग्वेज के डिफरेंसेस हैं। ओके, लैंग्वेज यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। लैंग्वेज के डिफरेंसेस है, कल्चर के डिफरेंसेस है ना, डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है। समझ में आया? यस सर। कहने को तो पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, अभी दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे आपको लगता है एक जैसे लोग हैं? No, नहीं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इज दैट क्लियर? ओके सर। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल प्रोविजन वहां पे पढ़ा था फेडरलिज्म में, यहाँ पे भी फंडामेंटल प्रोविजन देखेंगे। तो फंडामेंटल प्रोविजन यहाँ पे भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाएगी। फंडामेंटल प्रोविजन यहाँ पे किसकी बात की जाएगी? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है बताओ? Who decides basic structure? Constitution. बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का? अरे क्या हो गया इन बच्चों को? बेसिक लेजिस्लेटिव, प्रीएम्बल, जुडिशरी करती है। ओह, जुडिशरी 1973 केशव नंदा भारती केस बताया होगा। जुडिशरी डिसाइड द बेसिक स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली आएगा क्या? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। क्या आएगा? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। पावर शेयरिंग पढ़ा है ना? तो ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर में अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर इंडिया का क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट भी कह सकते हो, फंडामेंटल राइट्स भी कह सकते हो। तो इसको आप यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकते। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन हुम? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अब इसको यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकते हो। क्या प्रोविजन है? इट शुड बी फर्स्ट, लिख लो, ये पूछा जाता है एनटीएससी एज वेल एज सीबीएसई। फर्स्ट पास बाय both the houses of the parliament. Okay, by at least 2/3 majority। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये तो फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें? सेकंड, and ratified should be ratified by the legislature of at least half of the total state। अब जब आपने पीछे फेडरलिज्म पढ़ा तो उसमें यही पढ़ा था ना, यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकते। इट शुड बी पास बाय द बोथ द टियर ऑफ द गवर्नमेंट, और कंसेंट ऑफ बोथ द टियर ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब यहाँ पे वही सेम चीज है, यही है फंडामेंटल प्रोविजन। ये क्या है? फंडामेंटल प्रोविजन है। तो फंडामेंटल प्रोविजन को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे इंडिया के कंटेक्स्ट में। समझ में आ रहा है? जो पीछे पढ़ा है वही है सर। ये क्वेश्चन डीपीपी में भी था। हाँ, तो फंडामेंटल ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेस आई थिंक यू ऑल नो, इजंट इट? लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, फिर उसके बाद शुड बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। तो जितने भी टोटल स्टेट है उसमें कम से कम हाफ लोग, हाफ लेजिस्लेचर क्या करें? उसको पास कर दें। देन ओनली द फंडामेंटल प्रोविजन will be changed, otherwise it will not be। सर clear? Yes सर, यहाँ पे
रेटिफाइड मतलब रेटिफाइड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, मतलब कि दे हर एक एग्री, स्टेट में हाफ। रेटिफाइड, हाँ वो पास करते हैं, ठीक है, रेटिफाई करते हैं, दैट्स ओके, वी आर ओके विद दिस लॉ। सर मतलब कि हर एक स्टेट में हाफ से ज्यादा होना चाहिए या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टेट में हाफ से ज्यादा होना चाहिए? और जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, 28 है, तो कम से कम 14 ऐसे स्टेट हो जो क्या कर दें, रेटिफाई कर दें, 14 एंड अबव। ओके, और कोई डाउट? ये लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। चलो, तो नेक्स्ट है जुडिशरी। अब हम लोगों ने वहां पे जुडिशरी के बारे में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी जुडिशरी के बारे में देखते हैं। हालांकि मैंने बता दिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट रोल, राइट इट डाउन। In overseeing the implementation is that clear? ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है हमारे? जुडिशियरी। जुडिशियरी। तो इसीलिए देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में प्रोविजंस को देखता है हमेशा। अगर वो एज पर द प्रोविजन नहीं हुआ लॉ तो क्या कर देगा, नल एंड वॉइड, बताया है मैंने। और इसी को क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, बताया था पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में बताया होगा। और यहाँ पे कौन देखता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इज दैट क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ तक? सर समझ में नहीं आया। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी लॉ, अगर कोई भी लॉ पास किया जाता है, ठीक है, वो देखते हैं कि जुडिशरी कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को कहीं के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। अगर उसके अगेंस्ट जाएगा तो उसको नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड मतलब खारिज कर देना, ठीक है। इसको आप ऐसे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिजेक्ट समझ लो। सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर क्या वे है, जो वे है, जिस वे में जो है अमेंडमेंट होना चाहिए, क्या सेम वे फॉलो किया गया है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सारे वेज, प्रोविजंस में सारे वेज लिखे हुए हैं, सारे प्रोसीजर ले डाउन है कि अगर कोई लॉ पास होना चाहिए वो उसमें किन किन लोगों का कंसेंट होना जरूरी है, क्या क्या उसमें जो है इफ्स एंड बट्स हैं, व्हाट आर द वेज एंड मीन्स थ्रू विच दिस प्रोविजन शुड बी डन और शुड गेट इनटू अफेक्ट। तो यही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरऑल क्या करते हैं, देखते हैं कि ओवरऑल जो भी लॉ पास किया जा रहा है लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूट किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या नहीं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो जुडिशरी क्या कर देती है, फिर उसको रिजेक्ट कर देती है। ओके, अब कभी भी अगर टशल होता है बिटवीन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट तो उसको कौन रिजोल्यूशन निकालता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अभी आपने दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच में टसल चल रहा था, आपको मालूम है? यस सर, बीच में चल रहा था एलजी और केजरीवाल के बीच में कि कौन रूल करेगा दिल्ली में। यस सर। आप लोग न्यूज भी नहीं देखते? यस सर। तो उसमें कौन देख रहा था, दिल्ली का हाईकोर्ट भी तो देख रहा था। दिल्ली का हाईकोर्ट, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी अपना है रूलिंग, ये सब पढ़ना होगा आपको। सर केस जीता कौन? उसमें ये कंक्लूजन निकला कि आपको जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो उनकी कंसेंट को भी लेना जरूरी है, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फाइनल डिसीजन शुड बी टेकन बाय दोज हु आर इलेक्टेड, कहीं पढ़ा था? यस सर, पिछले साल पढ़ा। यस डिसीजन पावर शुड रेस्ट इन हैंड ऑफ दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल।
हाँ, तो कोर्ट ने यही कहा कि दे आर इलेक्टेड, सो यू शुड कीप देयर कंसेंट ऑल्सो, यू विल नॉट डू एनीथिंग यूनिलैटरली, let the consent of the elected government should be taken into consideration. Is that clear? सर। चलो, समझ में आ गया ना, आगे बढ़े? यस सर। अब देखो अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर, ये भी लिख लो। वो वहां पे मैंने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी शायद बताया था। तो ये क्या करते हैं, यूनियन and state government to raise resources। ठीक है, इनके अपने जो है कि टैक्सेस होंगे, इनके अपने टैक्सेस होंगे। ओके, और अपने रिसोर्सेज को क्या करेंगे, रेज करेंगे। अब ये कैसे करते हैं, बाय लेवाइंग टैक्सेस। अभी आपने देखा कि कोविड-19 की वजह से अल्कोहल पे दिल्ली गवर्नमेंट में 70% टैक्स लगाया था, आपने सुना था? यस सर। यस सर। हाँ, अब ये लेवाइंग टैक्सेस किस लिए करते हैं, इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऐसे लिख लो, इन ऑर्डर राइटिंग समझ में आ रही है ना सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा, इस पे भी लिख लो। किसी को कोई डाउट है? सर टैक्सेस के साइड में क्या लिखा है? लेवाइंग, इम्प्लीमेंट। Shall I rub this? Shall I rub this? सर लेवाइंग मतलब क्या होता है? यस सर। इसका मतलब लेवाइंग मतलब कि अब हिंदी में इसको कहते हैं इम्प्लीमेंट, समझो एक तरीके से। ठीक है, लेवाइंग का मतलब इम्प्लीमेंट एक तरीके से समझो। हिंदी। यस सर। सर जब ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाते तो इसके लिए जुडिशरी की लेवाइन को लगाना भी, आप लेवाइन को हिंदी में लगाना समझो। ठीक है, समान आस्क्ड, तो बेटर टू से इन दिस मैनर। हाँ, अब तुम बोलो क्या कह रहे हो? सर जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाती है तो उसमें जुडिशरी की परमिशन भी चाहिए होती है। क्यों, जुडिशरी से क्यों परमिशन लेंगे? अब वो उसमें ये करेंगे, टैक्स बढ़ा रहे हैं और ऐसा हो रहा है कि लोगों की प्रॉब्लम हो रही है, जब पब्लिक अनरेस्ट होगा तब जुडिशरी इंटरवीन करेगी। ओके, जब वो टैक्सेस अनफेयर नहीं है, या तो फिर टैक्सेस ऐसे लेवाई किए हैं जो जस्टिफाइड नहीं है और उनके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है। ओके, यस सर। हाँ, अब जैसे आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड आपने ले लिया, तो आधार कार्ड के जरिए आप देखोगे, अगर कह रही है कि हम आधार कार्ड दे रहे हैं, आपको स्पेशल सर्विसेज दे रहे हैं, आधार कार्ड या सब्सिडी वगैरह, तो इन सब के लिए अलग से आप सर्विस टैक्स दीजिए। अगर सपोज ऐसा कह दिया, तो ऐसा होगा नहीं, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा दैट इट इज योर वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जीक्यूट योर एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसमें ऐसा थोड़ी है कि हर एक चीज को काम करने के लिए आप जनता से क्या करोगे, पैसे मांगोगे। टैक्सेस कौन देता है? जो अच्छा इनकम अर्न करते हैं, रेस्ट सभी थोड़ी देते हैं टैक्सेस। ओके, और आधार कार्ड क्या होगा, सभी के पास होगा, तो सभी से अगर टैक्स लोगे तो प्रॉब्लमेटिक है ना। समझ में आया? चलो, और कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, हो सकता है एग्जाम में आपके पूछ लें, ठीक है। ये किस में आते हैं? स्टेट लिस्ट में। आप लोगों को दिख रहा है साइड में बुक में, अगर बुक रखा है तो? सर, ठीक है। तो पिंक बॉक्स में क्वेश्चन है। हाँ, व्हाई डू वी हैव मिनिस्टर्स, व्हाई डू वी हैव मिनिस्टर्स? इसमें हेल्थ भी कर लो। पिछली बार मैं बता रहा था कंकरेंट, पहले स्टेट बताया फिर कंकरेंट। ओके, तो हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। जैसे एग्रीकल्चर अब स्टेट लिस्ट में, कॉमर्स में, हेल्थ भी उसी में है। बट यू विल सी दैट मिनिस्टर ऑफ दिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखते हो आप हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हर्षवर्धन। वेरी गुड, डॉक्टर। श्योर। एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। अब इसमें ऐसा क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है? पर्टिकुलरली अगर एग्रीकल्चर और कॉमर्स को देखो, ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है? एग्रीकल्चर रिलेटेड मैक्सिमम, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस, और विलेजेस में ज्यादातर लोगों का डिपेंडेंसी किस पे है? एग्रीकल्चर पे। आप लोगों ने पढ़ा था ना, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड लोग किस में है? एग्रीकल्चर में। नियरली कितने? 50 to 60, जानते हो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें जो भी पढ़ाई होता है तो उसमें सर क्या अभी होता आपने है? थोड़ी देर क्या पढ़ा है, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया। आप एक बार शॉर्ट में बता देंगे? चलो ठीक है, बता रहा हूँ, लिख लो पहले जो बता रहा हूँ। तो इंटर स्टेट ट्रेड की बात आती है। ओके, अब जैसे स्टेट ए, ये स्टेट बी, स्टेट सी, ओके, अगर ये अपने अपने लॉ बनाएंगे तो हो सकता है ट्रेड अच्छे से ना हो पाए इनके बीच में। तो इनके लिए क्या चाहिए? एक मिनिस्टर चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब ये क्या करेंगे मिनिस्टर? ये हेल्प करेंगे। दिस मिनिस्टर विल हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। समझ में आ रहा है? किसमें हेल्प करेंगे? सर नहीं आया समझ। इंटर स्टेट ट्रेड, दो स्टेट के बीच में ट्रेड भी होता है। किसी के पास गेहूं है तो किसी के पास चावल है, राइस है, व्हीट है, राइस है, बाजरा, ज्वार, ठीक है। डिफरेंट रिसोर्सेज आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, पढ़ा था आपने? सो देयर इज अ नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, पढ़ा था ऐसे? Yes, sir. यस सर। स्टेट विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर हम यहाँ पे एग्रीकल्चर को रिसोर्स मान के चले तो मान लो इनके पास व्हीट है, ओके, इनके पास राइस है, इनके पास XYZ कुछ भी ले लो, शुगर केन मान लेते हैं, चलो। क्या होगा कि इनके यहाँ व्हीट ज्यादा है तो ये व्हीट यहाँ भी, यहाँ के लोग भी व्हीट खाना चाहेंगे, यहाँ के लोग भी राइस खाना चाहेंगे। शुगर केन का भी है, गुड़, जैगरी एंड ऑल, समझ में आ रहा है? तो ये भी शुगर केन यहाँ खाना चाहेंगे। सो ओवरऑल क्या होगा इससे? अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर होगा तो वो ओवरऑल इंटर स्टेट जो ट्रेड है उसके एग्जीक्यूशन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। समझ में आ रहा है? एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे आपस में ये कॉन्फ्लिक्ट ना कर सके, सो दैट conflict of any kind cannot arise, it does not arise. समझ में आया? तो जो 50 to 60% लिखा है ये क्या है? ये 50 to 60% पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। जब सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा मैं, इकोनॉमिक्स इसके बाद स्टार्ट होगा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में ज्यादा। आपने कुछ बताया एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स से पहले? दे आर पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, health is also part of state list. Okay sir. So why do we have minister of agriculture and commerce? So this is the reason. इसको बना के लिख लोगे सभी लोग? सर एक बार रीजन फिर से बता दो सर, समझ नहीं आया। क्या बता दूं फिर से? सर रीजन लिखो, लिख लो अब। वाइडर
दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है। ओके सर। पूरा बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ये हालांकि हाफ ही है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स आर द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, व्हाई डू वी हैव मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स? ठीक है, लिख लिया सभी ने? सर। यस सर। यहाँ बोलो। सर क्या स्टेट का अपने स्टेट में जो वाटर बॉडीज है उस पर राइट होगा? स्टेट का नहीं है, इसीलिए तो देखोगे आप इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी चलता है, ठीक है। कर्नाटक एंड केरला। हाँ, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी आप अभी वाटर रिसोर्सेज पढ़ाऊंगा तो वहां पे आएगा। वो तो नेचुरल रिसोर्स है ना, उसमें कैसे किसी का राइट हो सकता है? अब रिवर फ्लो कर रही है तो फ्लो कर रही है, ठीक है। तो बट उसमें भी आप देखोगे कि डिस्प्यूट रहता है, उसको भी सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? काउंसिल बनाया जाता है, इंटर स्टेट काउंसिल, डिस्कशन होता है उस पर, डिफरेंट कमिटीज बनते हैं उस पर, उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। यस ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ फेडरलिज्म practiced in India? ओके सो अब एक बार सुनो, फेडरलिज्म जो प्रैक्टिस हो रहा है, क्या ये मेयरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होने की वजह से हो रहा है कि चलो देयर इज अ लॉ बुक, अ सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें फेडरलिज्म लिखा है तो चलो हम सब मिलके फेडरलिज्म क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। डू यू थिंक सो? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। एसेंशियल फीचर क्या है? व्हाई फेडरलिज्म इज, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड? इट इज ड्यू टू मेनली, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो ठीक है, ये है ही, ठीक है, बट नॉट अलोन। सबसे मेन जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, विलिंगनेस ऑफ पीपल टू फॉलो फेडरलिज्म। समझ में आया? विलिंगनेस टू ऑफ पीपल टू फॉलो फेडरलिज्म, इट इज द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। सर। यस सर फर्स्ट पॉइंट फिर से बता दो। अब यहाँ पे विलिंगनेस कैसे होता है? रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, रेस्पेक्ट फॉर, यहाँ पे लोग डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करते हैं, एंड डिजायर, लोग चाहते हैं डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर। अदरवाइज मेयरली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर लोग नहीं तैयार हैं फॉलो करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू विल हैव टू अमेंड योर कॉन्स्टिट्यूशन। पावर शेयरिंग में पढ़ा था आपने, बेल्जियम ने 4 बार अमेंडमेंट किया था। यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन ही था ना, 4 बार अमेंडमेंट किया, एक बार बन गया तो क्यों 4 बार किया? 4 बार इसलिए किया कि उनकी विलिंगनेस थी टू फॉलो फेडरलिज्म, दे वर रेडी टू रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी एंड लिविंग टुगेदर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है। फेडरलिज्म में सारा कुछ कहाँ लिखा हुआ है? लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मेयरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होने की वजह से ये प्रैक्टिस नहीं होता। मेनली किस वजह से होता है? लोगों की वजह से। लोग क्या कर रहे हैं? लोगों के अंदर क्या है? विलिंगनेस है टू फॉलो फेडरलिज्म। लोग रेस्पेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी को, डिजायर है कि वी विल लिव टुगेदर, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, आपने पढ़ा होगा ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पढ़ा है?
चलो अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसके जरिए फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है इंडिया में। तो अगर हम पॉइंट 1 देखें तो लिंग्विस्टिक स्टेट आएगा। पॉइंट 1 लिंग्विस्टिक स्टेट। अब व्हाट हैपेंड कि अर्लियर, अगर एक रफ सा मैंने बना दिया है, ठीक है। अर्लियर क्या था कि बिग प्रोविंशियल थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रोविंस थे, ठीक है। हालांकि ये भी इंक्लूड हो गया, ये नहीं होगा। प्रेसिडेंशियल स्टेट याद है आप, प्रेसिडेंसी याद है आपको? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी याद है, बंगाल प्रेसिडेंसी, प्रिंसली स्टेट्स भी थे, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट पे जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो लोगों, अब देखो यहाँ पे लोग रह रहे हैं जो, ठीक है, अलग अलग जगहों पे लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। ओके, लैंग्वेज A B C D, समझ में आ रहा है? अब इनके अंदर ये फीलिंग आती है कि हम लोग एक जैसे दिखते भी नहीं है, ठीक है। एक जैसे अगर दिख भी रहे हैं सपोज, तो हमारी भाषा क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पे कारण क्या था डिवीजन का, लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है, हमारा वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है, तो ऐसा करो हमारे लिए एक सेपरेट स्टेट बनाओ। क्या बनाओ? सेपरेट स्टेट। तो पहले जवाहरलाल नेहरू जी हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, ही वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। तो देखा गया कि लोगों का प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया। प्रोटेस्ट क्या होता चला गया? बढ़ता चला गया। पोट्टी सी रमल्लू, ठीक है, आप लोग नाम सुनोगे, आंध्र प्रदेश, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने क्या किया था, पोट्टी श्री सर वो फास्ट करके मर गए थे, मतलब वो थे 57 डेज का फूड स्ट्राइक पे, फूड नहीं खाएंगे। क्या कह रहे हो? एनीवन इज सेइंग एनीथिंग? कौन क्या कह रहा है बताओ? सर उन्होंने प्रोटेस्ट में खाना खाना छोड़ दिया था, जैसे ये अन्ना हजारे करते हैं। सर किसकी बात कर रहे हो? यस सर। पोट्टी श्री रमल्लू के बारे में जानते हो? यस सर। ओके, तो अब चलो मैं बता रहा हूं। पहला स्टेट बना था लिंग्विस्टिक लाइन पे, ठीक है, राइट इट डाउन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अभी मैं बता रहा हूं उनके बारे में भी। ओके, पहले जवाहरलाल नेहरू और उनसे बनाए हुए जो कमिटी थी, उन्होंने क्लियरली जो है डिनाई कर दिया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे कोई भी स्टेट बन सकता है, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि पोट्टी श्री रमल्लू, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, पोट्टी श्री रमल्लू, इन्होंने लगभग 57 डे का क्या किया था, फास्ट रखा था, और मर गए, ठीक है। क्या हो गए? मर गए, डाइड। तो जो अभी कमेटी कह रही थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट नहीं बनेगा, अब वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्यों कह रहे थे? क्योंकि अगर वो, उनका मानना ये था कि ऐसे ही अगर हम स्टेट बनाते रहे लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो वन डे विल कम देन व्हेन द एंटायर नेशन विल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब स्टेट, ठीक है। या तो फिर कह लो कि जो भी अलग अलग स्टेट है वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट कंट्री बनते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? डिवीजन हो जाएगा कंट्री का। बट व्हेन पोट्टी श्री रमल्लू डाइड, दे अग्रीड, ओके यस इट कैन बी डन, वी कैन मेक स्टेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और सबसे पहला स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, राइट इट डाउन। कौन सा स्टेट बना था? फर्स्ट स्टेट, ठीक है, मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी? तेलुगु। तेलुगु। आंध्र प्रदेश कहां से निकला? मद्रास। फिर उसके बाद ईयर कौन सा है? 1953। ईयर कौन सा है? 1953, अक्टूबर 1953, ओके।
अब इसमें तेलुगु लैंग्वेज लिखवा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ये लिख लो। एक्चुअली इट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, कब आया था ये? 1956। 1956 में आया। ओके, और इसमें जो इसके हेड थे कौन कौन से थे ये लिख लो। पूछा तो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, यूपी के एनटीएससी में आ सकता है। फजल अली, श्री वल्लभ भाई पटेल, फजल अली, HN कुंजरू, KUNZRU, ठीक है, एक ही में कुंजरू, ठीक है, और KM पनिक्कर, ये इसके कमेटी के मेंबर थे। ओके, तो इस तरीके से फजल अली CGI थे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है सर, सेकंड नेम रिपीट कर दो। HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, वैसे नाम चेक कर लेना, यही है। लिख लिया सभी ने? शुड आई प्रोसीड फर्दर? सर नो सर। सर मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था सर, तो एक बार एक शॉर्ट समरी दे दीजिए इसकी। 43 रमल्लू डाइड हो गए। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज के बेसिस पे एक जो है स्टेट बनाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रही थी। 57 डेज का फास्ट किया, लगभग 56 या 57 डेज। ठीक है, अप्रॉक्स आप लोग लिख लेना इसमें, अप्रॉक्स। ओके, तो उसके बाद वो मर गए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट अग्रीड दैट ओके स्टेट बनाई जा सकती है ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे। उन्होंने आंध्र प्रदेश को पहला स्टेट बनाया ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस 1953 अक्टूबर में। ओके, मद्रास से निकल के तेलुगु भाषा के बेसिस पे हुआ था, ये याद रखिएगा। और एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, जिन्होंने ये मान लिया कि यस लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया जा सकता है। अब और भी जो है कि स्टेट बने हुए हैं, अब वो कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्लियर? चल आई रब। हाँ सर, तो इससे पहले किस बेसिस पे स्टेट बने हुए थे? ये पहला है, पहला लैंग्वेज के बेसिस पे। फिर कल्चर और एथनिसिटी के बारे में भी आएगा, अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ये लिख लिया आपने? नो सर। लिखो फटाफट। सर ये लिख तो लिया, पर सर 1953 और 1947 के बीच के पीरियड में सर, उसके बीच में स्टेट किस बेसिस पे बने थे? स्टेट अलग अलग स्टेट, पहला स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे तो आंध्र प्रदेश बना था। अब उसके बाद जो है कि कल्चर एथनिसिटी का भी रोल रहा है इसमें। ओके सर। कल्चर एथनिसिटी के बेसिस पे, जियोग्राफी के बेसिस पे। चलो अभी हम लोग देखेंगे कल्चर एथनिसिटी, जैसा कि इन्होंने पूछा। सर और कोई लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं था? बना है ना उत्तराखंड। नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे उत्तराखंड नहीं बना है। कर्नाटका। हाँ। बंगाल, तमिलनाडु। वेट, यहाँ पे मैं लिख रहा था। ओके, कल्चर एथनिसिटी और जियोग्राफी के बेसिस पे अगर आप देखें तो कई सारे स्टेट बने। इसमें से एक है नागालैंड। ये एक बार एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा भी है। नागालैंड पहले किसमें था? असम में। ठीक है, असम से निकल के नागालैंड बना है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट 1963 के अराउंड है। अभी आप देखोगे पंजाब से निकल के हरियाणा बना है हिंदी लैंग्वेज के बेसिस पे। गुजरात, महाराष्ट्र से निकल के गुजरात बना है। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे। समझ में आ रहा है?
तो इस तरीके से अलग अलग बने हैं। ये 1963 वाला लिख लो। अब डेटा तो बहुत सारे हैं, आपको तो नहीं सर लिखना है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है। अब उत्तराखंड के बारे में देख लो। छत्तीसगढ़, झारखंड बना है बिहार से निकल के। छत्तीसगढ़ बना है एमपी से निकल के। ये झारखंड यूपी एनटीएससी में आया हुआ है 1 नवंबर, ठीक है। उत्तराखंड ये निकल के बना है यूपी से 9 नवंबर। फिर बना है झारखंड, ये निकल के बना है किससे? बिहार से, ओके 15 नवंबर। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा दिए, बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन सर्च इन विकिपीडिया एंड ऑल। और बिलीव में अगर ये सब करते हो, इसको डीपली एनालिसिस करते हो, तो जो मेन कंटेंट है वो छूट जाएगा एंड यू विल बी इन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो मेन कारण था वो सोशियो पॉलिटिकल रीजन था। सोशियो पॉलिटिकल रीजन। कितने स्टेट बने ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? यस सर। अब ये देखना होगा, मुझे याद नहीं है इस समय, ठीक है, फाइंड इट आउट, ओके। अदरवाइज जब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, याद आता है तो, ठीक है। सोशियो पॉलिटिकल रीजंस इसका मेन रीजन रहा है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहा है, क्योंकि ये स्टेट क्या थे, काफी बड़े थे। इज दैट क्लियर? तो ये रीजन लिखोगे, लिंग्विस्टिक नहीं लिखोगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर। सर हाँ बताओ। सर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज आल्सो मेक एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। सर हाउ? एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। अब देखो ये बड़ा स्टेट है, लैंग्वेज के बेसिस पे आपने एक बना दिया। ये स्टेट सपोज ये एक्स वाई जेड कोई स्टेट था, इसमें से एक निकल के बना ए। अब एक्स वाई जेड अगर ये पूरा होता तो ये क्या करते, पूरा का एडमिनिस्ट्रेशन करते, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा करते। अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है, मैंने अभी बताया था पीछे। यस सर। आपके पुलिस आ जाएंगे, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं ना। यस सर। सब कुछ उसी में आएगा। तो अगर ये ब्रेक हो गया तो एडमिनिस्ट्रेशन अब इतने में रह गया ना। तो पहले इतना बड़ा एरिया था, अब छोटा सा एरिया हो गया। समझ में आ रहा है? तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा या खराब होगा? अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो ये आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अरे हाँ तो बोलो। यस सर। यस सर। जो भी पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, किसने कहा थोड़ा थोड़ा आ रहा है? सर मैंने कहा। क्या नाम है आपका? सर वैभव विशाल झा। वैभव विशाल झा। क्या थोड़ा थोड़ा आ रहा है? मतलब सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मेरे को। बाकी क्यों नहीं आ रहा है? सर बाकी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बाकी मैंने मतलब स्कूल में पढ़ा नहीं है। मतलब सर स्कूल में तो नहीं पढ़ा है सर मैंने, और एसएसटी में उतना बढ़िया नहीं लगता मेरे को। ओ क्यों? सर एसएसटी में बढ़िया इसलिए नहीं लगता क्योंकि एसएसटी में बहुत कुछ रटना पड़ जाता है। तुम्हें ऐसा सिखाया गया है ना, रटा जाता है। आप यहाँ पे 9th में थे? नो सर। तो यही प्रॉब्लम है। बताओ 9th के बच्चों, ये रटाया है मैंने आप लोगों को? नो सर। नो सर। नो सर। मैंने किसी को रटाया नहीं है, और इसीलिए मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ तो 9th का भी बीच बीच में मैं याद दिलाता हूँ, या पीछे जो है पढ़ाया हुआ है सारा याद दिलाता हूँ। कोई बात नहीं। वैभव विशाल, विशाल नाम है ना आपका? विशाल। यस सर। हाँ सर दोनों नाम है, वैभव भी है विशाल भी है। ओके, वैभव विशाल, कोई बात नहीं, नया है, ठीक है। आप इसको देखते रहिए, समझिए। अब धीरे धीरे आप नोट्स खुद लिखने के लिए देते थे, उससे बड़ा याद हो जाता था। हाँ सर जो आप नोट्स खुद लिखने के लिए देते थे ना कि घर से लिख के लाओ, उससे हाँ। बहुत ज्यादा चीजें याद हो जाती थी। हाँ, अब आप देखोगे बोर्ड में, जो आप देखोगे तो ओवरऑल जो कंटेंट आता है, पैसेज भी जो आता है तो एनसीईआरटी से आता है। और जिसने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रखी है
उसको वहां एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको तो मालूम है कि अरे तो मैंने इसके तो नोट्स भी बनाया है, और वो फटाक से पैराग्राफ पढ़ लेंगे। और जिस बच्चे ने इस तरीके से नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ समझेंगे। आप लोगों के 9th में जो है एग्जाम में ऐसा ही हुआ होगा ना? ये सर पैराग्राफ आया था, पैराग्राफ आया था, डायरेक्ट कर दिए थे वो। ठीक है, तो नोट्स वगैरह इसीलिए मैं कहता हूँ बनाने के लिए। ये आज के डेट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग वर्चुअल स्टडी कर रहे हैं, और इसमें भी जो है कि वर्चुअल स्टडी इज नो स्टडी एट ऑल। ठीक है, तो आप भी वही प्रैक्टिस को क्या रखिए, कैरी ऑन रखिए, ऑनेस्टी से पढ़िए। जो भी अगर मैं सपोज पूछता हूँ क्वेश्चन आंसर, तो ऑनेस्टी से आंसर दीजिए। अब ये नहीं कि बगल में बुक रख के, कॉपी रख के फिर आंसर दे रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे अगर ऑनेस्टी बनाए रखेंगे तो आपको चीजें याद होंगी, लर्न होंगी। इज दैट क्लियर? वैभव, विशाल? यस सर। अच्छा लगने लगेगा आपको? ठीक है, ओके सर। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो अलग से आप पूछ सकते हो। ओके सर। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं वैसे आप? नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल सर। ये तो ये भजनपुरा के आगे है सर। भजनपुरा क्या होता है? अच्छा अच्छा, आप कौन से जगह पे है आपका स्कूल? सर पटपड़गंज। अच्छा, पटपड़गंज। सर केल्विन के लोग आए थे वहां पे। ओके ओके, चलो ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेकंड, लैंग्वेज पॉलिसी। सेकंड क्या है हमारा? लैंग्वेज पॉलिसी। इस सभी पे नोट्स बना लेना सभी लोग, ठीक है? तो अब ये बताइए हमारे 8th शेड्यूल, ये पहले लिख लो। 8th शेड्यूल में अगर आप देखो तो कितने लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद है आप लोगों को? 7th शेड्यूल मैंने कराया था। यस सर, शेड्यूल कभी करवाया था ना आपने? हाँ, ये 8th शेड्यूल है। तो कितने लैंग्वेजेस हैं? 22। ये कई बार एनटीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज डू वी हैव? क्या इंग्लिश इसका पार्ट है? चलो बताओ, इंग्लिश इसका पार्ट नहीं है? नो नो सर, नहीं है, इंग्लिश इज नॉट पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल। ठीक है, हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है? सर इंग्लिश और हिंदी। सर कुछ नहीं है सर, हिंदी और इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नो पर्टिकुलर ऑफिशियल लैंग्वेज सर, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, नो पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नेशनल लैंग्वेज। ओके, अच्छा हमने इससे पहले जो पढ़ा था लिंग्विस्टिक स्टेट, तो लिंग्विस्टिक स्टेट में आपने देखा उस समय जो लिंग्विस्टिक स्टेट बने, ओके, तो जो पहले प्रधानमंत्री थे डर रहे थे कि अगर लिंग्विस्टिक स्टेट बन जाएगा तो ये सेपरेट हो जाएंगे तो धीरे धीरे अलग हो जाएंगे पूरी तरीके से, हो सकता है इंडियन यूनियन से भी निकल जाए, इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। समझ रहे हो? क्या ऐसा हुआ? नो सर। तो फेडरलिज्म और पहले से क्या हो गया, स्ट्रांग हुआ या वीक हुआ? स्ट्रांग हो गया सर, स्ट्रांग हो गया सर, स्ट्रांग हो गया सर। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनने के बावजूद भी, ठीक है, जो सिनेरियो था वो पहले से अच्छा ही हुआ है, खराब नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No particular. Okay. No particular language is official language. Sorry, national language. अब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, हिंदी। हिंदी। इंग्लिश और हिंदी दोनों है शायद। हमारी इंग्लिश एंड हिंदी है, ठीक है। और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारा इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जैसे तमिल वाले केस में आपने पढ़ा था कि उन्होंने सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, याद है? यहाँ पे भी यही हुआ आज पर आर्टिकल। यस सर, तमिल की डिमांड करी थी। हाँ, आर्टिकल 343, ठीक है, 1 क्लॉज 1 है। इसके हिसाब से हिंदी शुड इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इट शुड बी प्रमोटेड अमंग ऑल। अब यहाँ पे देखोगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज जब हिंदी को बनाया जाता है 40% लोग क्या बोलते हैं? हिंदी।
रेस्ट आर नॉन हिंदी। तो पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी बताओ? नॉन हिंदी स्पीकर। नॉन हिंदी नॉन हिंदी में सबसे ज्यादा तमिल स्पीकर। सर तमिल साउथ के जो लोग हैं, हाँ, they will say that why we will study Hindi, why we will communicate in Hindi। एक काम करो, तमिल भी ऐड करो। ने श्रीलंका वाला हाल देखा है ना, वही होगा यहाँ पे भी। समझ में आया? सर तमिल जानता है। हाँ, ऐसा नहीं है, उनका भी कॉज सही है, ठीक है। तो हिंदी को आप प्रमोट कर सकते हैं। आप देखते हो प्रमोशन भी होता है, जब होता है, अगर साउथ में होता है तो वो होर्डिंग वगैरह उठा के फेंक देते हैं। प्रमोशन किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 343, बट वी हैव सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश वो उन्हीं की वजह से रखा गया है क्या? यस, दैट्स वाई जो मेजर इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, वो किसमें कम्युनिकेट करते हैं? इंग्लिश। दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट मी टेल यू, you have a lot of knowledge but you don't know English, that knowledge will went into vain. No one will give means importance, oh you don't know English, ऐसे कहते हैं। हम 2-3 नेशनल लैंग्वेज नहीं कर सकते, इससे प्रॉब्लम ना होता। तो एक कॉमन लैंग्वेज, अब देखो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा बोली जा रही है। अब एक कॉमन भाषा क्या ले ली गई है? इंग्लिश, सभी को एक्सेप्टेबल है। चलो ठीक है, आपके यहाँ कौन सा भाषा है? ए, बी, चलो सभी लोग क्या करेंगे, ना तुम्हारा भाषा बोलेंगे ना तुम्हारा, एक पर्टिकुलरली वन भाषा को इंपॉर्टेंस देंगे जिसका नाम है एक्स। एक्स हियर रेफर्स टू इंग्लिश। हालांकि ये ट्रायंगल बन गया है, इसको इग्नोर करना, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इंग्लिश हेल्प्स इन यूनिफिकेशन, ठीक है, हेल्प्स इन कम्युनिकेशन थ्रू आउट द इंडिया। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, पहले इंग्लिश को डिसाइड किया गया था 1965 में बंद कर देंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया, प्रोटेस्ट हुआ, अनरेस्ट हुआ, और फिर इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में डाल दिया गया। लिख लिया सभी ने? इस पे शॉर्ट नोट्स बना लेना। यस सर। समवन इज सेइंग समथिंग। चलो नेक्स्ट है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन। नेक्स्ट वन इज सेंटर स्टेट रिलेशन। अब देखो लैंग्वेज पॉलिसी में भी देखा जाए तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अब सेकंड जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आउटकम्स क्या निकलते हैं? फेडरलिज्म हमारे यहाँ और भी ज्यादा क्या हुआ, मजबूत हुआ। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने श्रीलंका की तरह नहीं डिनाई नहीं किया ऑफिशियल लैंग्वेज को। श्रीलंका ने क्या किया था, डिनाई कर दिया कि नो यू विल हैव टू स्पीक सिनाला विल बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। दे डिनाइड तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, बट इन इंडिया यू विल फाइंड that they had accepted, the government had accepted, okay, English will be the second official language, ठीक है, and the major institution will communicate in English, ठीक है। और डिफरेंट स्टेट के पास इंडिया में डिफरेंट ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ठीक है। ये तो ओवरऑल इंडिया की बात हुई कि हिंदी इंग्लिश बोथ है। डिफरेंट स्टेट विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब सपोज इफ यू आर लिविंग इन यूपी, then यूपी will have हिंदी as an official language. यूपी हैज अ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जब सरकार कुछ निकालती है, ठीक है, राजपत्र जिसको गैजेट कहा जाता है, तो हिंदी में लिख के देते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझ लो। आर्टिकल 352 नेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट, एनटीएससी यूपी में आया हुआ है, नेशनल इमरजेंसी। दिल्ली में भी आया हुआ है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 ये क्या है? स्टेट इमरजेंसी। इसको कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल। कौन सा रूल? प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 360 इसको कहा जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी।
इंडिया में ये कभी नहीं लगा है, कभी भी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, पर स्टेट प्रेसिडेंट रूल या नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। इमरजेंसी याद है? यस सर, 1975 में लगी थी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी। अरे वाह, very good। क्या नाम है आपका? सर वैभव अरे विशाल इंदिरा गांधी ने लगवाया था। अरे वैभव, तुम तो जो आंसर भी दे रहे हो और कहते हो मेरा- बता भी नहीं मुझे SST, है ना? सर तुम्हारी तो SST, मुझे तो लगता है तुम्हारी SST सही है। चलो सर उतनी भी सही नहीं है, आपको सच्चाई नहीं पता मेरी। सर चलो तो भाई। प्रेसिडेंट ने जल्द जल्द में लगा दी थी ना इमरजेंसी, तब वो प्रेसिडेंट ने जल्द जल्द में लगा उसमें दी सारे थी मिनिस्टर को जेल में डाल दिया था, उनके राइट्स छीन लिए जाते थे। कौन पूछ रहा था क्वेश्चन? फिर से बोलिए एक बार। सर मैं ये कह रहा हूँ, जब इमरजेंसी लगी थी तब वो प्रेसिडेंट ने वो जल्दी से कर दी थी ना इमरजेंसी, मतलब ज्यादा कुछ देखा नहीं था। हाँ, उस समय इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हो ना? यस सर। इंदिरा गांधी ने लगवाया था, ठीक है। अब आ जाओ सर। अब यहाँ पे पहले ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने, ठीक है, फिर आई विल गेट बैक टू द क्वेरीज। अब इधर आओ। अब ये सेंटर स्टेट रिलेशन किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। किस पे डिपेंड करता है? पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स पे, ठीक है, दैट हाउ दे आर फॉलोइंग द अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट? जो कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट दिया है फेडरलिज्म का, ठीक है। अब यहां पे देखोगे इंडिया में क्या था कि बड़े समय तक, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम एक ही पार्टी क्या करती थी? रूल करती थी। ओनली वन पार्टी यूज्ड टू रूल। ओके, एक ही पार्टी क्या कर रही है? रूल कर रही है। अब होता क्या है, थोड़ा वैसे समझो। सेंटर यहां पे, अभी क्या है? स्टेट। अब देखो इलेक्शन यहां पे भी हुआ, यहां पे भी वो पार्टी बन गई, नाम नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। तो अब वो क्या होगा कि यहां पे भी पार्टी बन गई, स्टेट में वो पार्टी सपोज नहीं बनती है, यहां पे पार्टी ए बनती है, यहां पे पार्टी बी बनती है। अब पहले क्या था कि 1990 से पहले लगभग, ओके, 1990 से पहले तो ये ए क्या करती थी? आर्बिट्रेरली स्टेट गवर्नमेंट को हटा देती थी। कैसे हटा देते थे? प्रेसिडेंट रूल। कैसे हटा देते थे? प्रेसिडेंट रूल। स्टेट इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल कब आता है? जब गवर्नर कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या हो गई है? ब्रेक डाउन हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? नो सर, समझ नहीं आया ये वाला पॉइंट आर्टिकल 356 का। अब देखो, गवर्नर के पास पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट को आमंत्रित करे और कह दे कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ठीक है। तो गवर्नर को क्या कहता है, किस ग्राउंड पे कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेक डाउन, मीन्स ओवरऑल जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो यहाँ पे क्या हो चुके हैं? ब्रेक हो चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सो अंडर दैट सिनेरियो प्रेसिडेंट विल इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन दैट स्टेट। समझ में आया? सर पर करप्शन, मतलब जब तक ये हो गया कि जब तक करप्शन हाईलाइट नहीं होगा तब तक वहां पे नहीं लगेगा प्रेसिडेंट रूल। हाँ नहीं, देखो पहले क्या था कि अगर पार्टी ए यहाँ पे जीत के आई, ठीक है, मेन पार्टी, अब देखा कि बाकी स्टेट में क्या हो गया, पार्टी ए जीत रही है, ठीक है, बट ये एक स्टेट ऐसा है जहां पे पार्टी बी जीत गई, तो यहाँ पे भी पार्टी ए चाहेगी कि अपना एक स्टेट बन जाए, ये भी अपने अंडर में आ जाए। तो वो क्या कहेंगे, वहां के गवर्नर को कहेंगे कि ऐसा कहो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी जो है यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो गया। अब वो क्या कहेंगे, फिर प्रेसिडेंट को कहेंगे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रहा है। प्रेसिडेंट को कौन हेल्प करता है, एड एंड एडवाइस करता है? यूनियन गवर्नमेंट। पढ़ा है आपने? यस सर। नॉमिनल पावर होता है, तो यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर देगी, प्रेसिडेंट रूल लगा देगी। और प्रेसिडेंट यहाँ पे जब रूल कर रहा है तो कौन रूल करता है? यूनियन गवर्नमेंट रूल करती है। यस सर। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर होता है। इज दैट क्लियर? प्रेसिडेंट के पास क्या होता है? नॉमिनल पावर।
तो इन वन वे और दी अदर ये क्या करते हैं, इमरजेंसी के जरिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना देते हैं, जहां पे स्टेट को क्या किया, बाइकआउट कर दिया, अगर दूसरी पार्टी ने वहां पे अगर गवर्नमेंट बना ली है तो ऐसा 1990 से पहले होता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, कैन आई रब दिस, अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर इमरजेंस हुआ कोएलिशन गवर्नमेंट का। किसका इमरजेंस हुआ, कोएलिशन। अब जैसे वो पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, अब किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। टोटल लोकसभा सीट कितने हैं इलेक्टेड, 543, आपने पढ़ा है, पढ़ा है ना? यस सर, यस सर, यस सर। मेजॉरिटी कब मिलेगी, जब 272 मिल जाएंगे सीट। यस अगर सर, ये चारों, यस सर, अगर इन चारों के किसी के पास 272 नहीं है, ठीक है, सपोज इनके पास 100 है, इनके पास 50 है, इनके पास 22 है, ठीक है, यहाँ पे ई एफ भी लगा दो, ओके, और इनके पास 100 है, ये चारों मिलके बना रहे हैं 272, यस सर, ओके। तो इन्होंने चारों ने डिसाइड किया दैट वी विल फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट। कहाँ, कोलिशन सेंटर पे। गवर्नमेंट। हाँ, सेंटर पे क्या किया, कोएलिशन गवर्नमेंट बना लिया, ओके। अब स्टेट में क्या होता है, अब ये देखो, स्टेट में, अब स्टेट में सपोज जो हम लोगों ने पहले एग्जांपल लिया था ए, तो मान लो यहाँ का यहाँ पे ए को मिल जाता है, यहाँ पे किसको मिलता है, बी और सी, यहाँ पे किसको मिल रहा है, ए बी। तो ए यहाँ पे बना, यहाँ पे बन गया उसका गवर्नमेंट, यहाँ पे ए बी बना, यहाँ वाला देखो नहीं बना ए का। इज दैट क्लियर? तो अब ये ए जो है इस बी और सी को नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि यहाँ पे भी बी और सी हैं और यहाँ पे भी बी और सी हैं। अगर ए ने इसको हटाने की कोशिश की तो ये बी और सी यहाँ से भी क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ये बी और सी यहाँ से भी क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। मीन 72 सीट निकल गए, बचा कितना फिर, 200। समझ में आया? सरकार रहेगी या गिर जाएगी? गिर जाएगी, सरकार केंद्र में से गिर जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे बी और सी भी क्या रहेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो डाउट, हाँ बताओ तो जैसे ए के पास 100 सीट है और ए बोल रहा है कि मैं कोलिशन गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करूंगा, तो फिर क्या होगा? तो कोई और फॉर्म करेगा, कहेगा अरे मेरे पास यहाँ पे ऐसा एक्सेप्शन आ गया कि सर कि बस ए अगर मिलेगा तभी कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होगी क्योंकि उसके पास मैक्सिमम सीट है 100। अगर वो वेट, मतलब सर एग्जांपल जैसे 200 या 2 ऐसी है। रुक जाओ, अगर ए मना करता है तो कहते हैं ठीक है तुम बहुत नाटक कर रहे हो, हम लोग इससे मिलके बनाएंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ए पे समझो सर 200 है पर वो नहीं चाहता है कोलिशन गवर्नमेंट बनाना। मतलब कुछ ऐसा गवर्नमेंट जिसके पास, तब वो घर पे आराम करते, गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाना चाहते वो? अब गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते, ठीक है, तो अदर पार्टीज तो बनाएंगी। अगर कोई पार्टी जो है तैयार नहीं है तो फिर से इलेक्शन होगा, और फिर से इलेक्शन होने का मतलब क्या, पब्लिक का पैसा जाएगा, बर्बाद होगा। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट तो बनाएंगे। क्या कह रहे हो? तो फिर से वही सेम हो गया, वही सेम प्रोसेस कि ए के पास ज्यादा 270 है लगभग और बाकी सबका मिला के भी 272 नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या 272 हो रहा है? सर ये हो रहा है ना, अगर एग्जांपल में 270 ले ले अगर उसके पास तो। अरे भाई होगा, ठीक है, सभी को पावर चाहिए। अभी महाराष्ट्र में देखो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है ना, राज ठाकरे की। पहले वो किसमें थे, बीजेपी के अलायंस थे, एनडीए। यस सर। अब कांग्रेस के साथ हैं। इट्स ऑल अबाउट पावर। सिविक्स में एक बात आप लोग साइड में लिख लो, इट्स ऑल अबाउट पावर। ठीक है, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है। सर मैं ये पूछ रहा था कि जम्मू कश्मीर में अभी स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है ना? स्टेट इमरजेंसी इलेक्शंस तो हुए थे बट वो पंचायती वाले शायद हुए थे। यस, ठीक है, ओके सर, फिर भी एक बार रिव्यू कर लेना, बट आई थिंक यस। चलो अब इसमें देख लेते हैं क्या है, हम लोग को कंक्लूजन क्या निकला कि पहले सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन थे वो फेडरल नहीं थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
over a period of time, ठीक है, particularly 6 बजे after 1990 the concept of coalition government came and center state relation became healthier. समझ में आ रहा है? Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो इस पे क्या करेंगे? शॉर्ट नोट्स बनाएंगे. समझ में आ रहा है सर? और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट. ये तो आई थिंक 9th में भी पढ़ा है, यहाँ पे भी पढ़ रहे हो. तो आई डोंट थिंक दैट यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस. हाँ बोलो सर, वो स्टेट इमरजेंसी में सर प्रेसिडेंट रूल हो जाता है तो फिर री इलेक्शन होते हैं. हाँ, प्रेसिडेंट रूल होगा तो फिर से इलेक्शन होगा. ठीक है, अब वो डिपेंड करता है अब कि वहां पे वो ग्राउंड्स हैं या नहीं इलेक्शन के. अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि यहाँ पे अभी भी ग्राउंड्स सही नहीं है इलेक्शन कंडक्ट कराने के, तो इलेक्शन नहीं होगा. एक टाइम पीरियड है. ठीक है, दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन. अभी ये समझ में आया जितना बताया मैंने? यस सर. कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए हैं जिसमें कि सेंटर जो है आर्बिट्रेरली स्टेट गवर्नमेंट को नहीं हटा सकता. ठीक है, कई सारे. हाँ बोलो सर. बुक में जैसे लिखा है कि आफ्टर 1990 द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स. तो कितनी कोलिशन गवर्नमेंट्स आ चुकी है अभी तक इंडिया में 1990 के बाद से? देखो, कोलिशन गवर्नमेंट में एक एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. ये क्या है? अलायंस है ना, यही कोलिशन गवर्नमेंट होता है. एनडीए में सबसे मेजर पार्टी कौन है? बीजेपी है. बीजेपी है. यूपीए में कौन है? कांग्रेस है. ठीक है. और सर बाकी कौन कौन सी पार्टी इनके अंदर? अब उसमें बहुत सारे पार्टी हैं. अब एक लेफ्ट फ्रंट भी है, कम्युनिस्ट पार्टी टाइप. ठीक है, ये भी है. हम लोग जब पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे तो इसमें डिस्कशन होगा इसका. ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए तो आप ये एनडीए का और यूपीए का आंसर देना. नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस लिख लो, कहीं लिखना है तो. Is that clear? Yes sir. Yes sir. चलो, तो अब इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि अब देखो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए हैं और यहाँ पे अब क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जिसमें सेंटर स्टेट को आर्बिट्रेरी मैनर में नहीं हटा सकता या डिसमिस नहीं कर सकता. ऐसे लिखो, कैन नॉट डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट मैनर. मनमाने तौर पे ऐसा नहीं जब मन किया तो कह दिया अरे स्टेट गवर्नमेंट है अब चलो निकलो अब हम लोग रूल करेंगे. समझ में आ रहा है? तो अब इसी तरीके से फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है. हम लोगों ने लिंग्विस्टिक स्टेट पढ़ा, वहां पे भी देखा कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बने तो, बट डिवीजन नहीं हुआ. ठीक है, क्या हुआ? फेडरलिज्म और मजबूत हुआ. लैंग्वेज पॉलिसी में देखी गई कि हमारे लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है और ऑफिशियल लैंग्वेज 2 हैं. ठीक है, हम लोगों ने ट्राई किया और एकोमोडेट किया, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया और फेडरलिज्म पहले से और बेहतर हुआ है. हमारे यहाँ जो है सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं हुआ जैसे कि श्रीलंका में हुआ. सेंटर स्टेट रिलेशन पहले हेल्दी नहीं थे. ठीक है, अब क्या है? हेल्दी हैं ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट. यही पढ़ा ना? तो इसी तरीके से फेडरलिज्म क्या होती है? प्रैक्टिस्ड होती है इंडिया में और फेडरलिज्म इज वर्किंग इन अ सिस्टमैटिक वे और दैट्स व्हाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रिवेल्स इन इंडिया. ठीक है, अब एक एग्जांपल में आप देख लो, आपके एग्जाम एनटीएससी में आ सकता है. प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर्स, ये लिख लो कहीं पे. सबसे ज्यादा कौन बोलते हैं यहाँ पे? भाषा की अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी 40.2. ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है और असेंडिंग या डिसेंडिंग में आ सकता है. बांग्ला बोला जाता है 8.3. लिख रहे हो सभी? Yes sir. तेलुगु 7.9. फिर मराठी 7.5. फिर नेक्स्ट है तमिल 6.3. ठीक है,
5 याद रखो, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। सर हाँ बोलो। सर एनसीईआरटी में मुझे एक कार्टून में डाउट था। बताओ। सर जिस पेज नंबर 21 पे जहाँ पे स्टेट स्प्लिट फॉर मोर पावर्स का है, उसके नीचे सर एक पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कोएलिशन गवर्नमेंट भी है। क्या है सर? पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कोएलिशन गवर्नमेंट का कार्टून है। हाँ बताओ फिर उसमें क्या हो गया? सर वो समझ नहीं आ रहा है वो डिपिक्ट क्या करना चाह रहा है। क्या पेज नंबर बताया आपने? पेज नंबर 21 सर। पेरिस ऑफ रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो इन कोलिशन गवर्नमेंट नो वन इज पीएम, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट में देखा जाए तो कोई अच्छा इस कार्टून में क्या दिख रहा है कि अलग अलग जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो मजबूर दिख रही है ना। वेट करो, अभी थोड़ा ओपन हो जाने दो, एनसीईआरटी देखते हैं। दिख रहा है ये सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। वेट करो, ओपन होने दो। चलो, इसमें ओवरऑल आप यही देखोगे कोलिशन गवर्नमेंट में कि स्टेट के पावर्स ज्यादा, स्टेट के पास ज्यादा पावर है नहीं। वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमें और ज्यादा पावर दीजिए, और उन्हें नहीं मिलता है। यही पिक की बात कर रहे हो? इसी पिक की बात हो रही है ना सर? सेकंड वाली। क्या है? पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कोएलिशन गवर्नमेंट। हाँ, हाउ कैन द लीडर ऑफ अ कोलिशन कीप द पार्टनर ऑफ गवर्नमेंट सेटिस्फाइड। अब क्या है कि कोलिशन गवर्नमेंट में यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अब इसमें सभी को कंसिडर किया जा रहा है। देख रहे हो, इनकी जो गद्दी है वो यहाँ इनसे भी बनी है, इनसे भी बनी है, इनसे भी बनी है, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी। दिख रहा है? ये सभी लोग उस जो है गद्दी का हिस्से, गद्दी का क्या है, हिस्सा है, उस सीट के हिस्से हैं। और इनको पसीने निकल रहे हैं कि अरे भाई मैं अकेला तो नहीं हो पाया, इतने लोग मेरे साथ हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो इसमें यही डिपिक्ट कर रहा है। तो कोलिशन गवर्नमेंट में जो पीएम है वो पीएम नहीं रहता, वो क्या रहता है, मैनेजर रहता है। मैंने शायद 9th में बताया होगा, बताया है? यस सर बताया था। हाँ, तो वो इसी को डिपिक्ट कर रहा है। तो चलिए ठीक है, इमेज भी देखते रहिए। सर वो जो ऊपर वाली उसकी इमेज थी, द स्टेट दैट फॉर मोर पावर, उसमें इंदिरा गांधी के साथ वो कौन है जो स्टेट्स को पावर करो कौन? इंदिरा गांधी के साथ कौन है, अब तो ये देखना होगा। बट इंदिरा गांधी दिख रही हैं साफ साफ। ये नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि ये कौन खड़ा है, बावर्ची टाइप का है कोई, आई डोंट नो हु इज ही। ठीक है सर प्रेसिडेंट, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और उनका ठीक है, कि बॉडीगार्ड। आप वो कार्टून को जो है कि पहचान, अब जो भी हो XYZ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दें। ओके, और पार्टिसिपेंट 55 रह गए। वेयर आर द रेस्ट? Sir, what is the proportion of speakers of English? वेरी वेरी लेस। ठीक, इंग्लिश के जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम है। सर वो सेकंड लैंग्वेज में ज्यादा हो गई क्योंकि इंडिया सेकंड नंबर पे है ज्यादा बोलने में इंग्लिश। लोग सेकंड हैंड ज्यादा यूज करते हैं। इंग्लिश होने के बावजूद भी इंग्लिश बहुत ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, नहीं सर, इंडिया तो सेकंड लार्जेस्ट स्पीकर है इंग्लिश में, इसलिए मैं पूछ। तो इंग्लिश, अब यहाँ पे जनसंख्या भी तो देखो कितनी है, जनसंख्या भी तो बहुत ज्यादा है ना। यस सर, यस सर। सर इसी वजह से हिंदी जो है वो थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस बोलने में। हाँ, आप लोग देख लो, आपकी किताब में दिया भी होगा। ठीक है, इंग्लिश के बारे में दिया भी है।
मदर टंग जो है कि आप मदर टंग पूछ रहे थे या ओवरऑल रिकॉर्डेड डेटा ये है कि इंग्लिश मैंडेटरी है सभी के लिए, ठीक है, बट मदर टंग बहुत कम लोगों की है, इट्स नियरली लेस देन 1% अप्रॉक्स, ठीक है, और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट्स व्हाई मैंडेटरी टू नो इंग्लिश। यस सर, बुक में क्या हुआ है 0.02%। हाँ चलो ठीक है, आज जो पढ़ा है वो समझ में आया? यस सर। यस सर। डाउट है? यस सर। जितना पढ़ा है सभी पे नोट बनाएंगे सभी लोग, ठीक है? ओके सर। डीपीपी सॉल्व करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर चैप्टर खत्म? चैप्टर फेडरलिज्म खत्म हो गया। सर इकोनॉमिक्स में कौन सा चैप्टर? पहला, दूसरा सर फिर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बच गया। यस सर, डिसेंट्रलाइजेशन बचा है अभी शायद। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन बचा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले डिसेंट्रलाइजेशन खत्म करेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? वी विल स्टार्ट क्लास विद डिसेंट्रलाइजेशन। ओके सर। स्टार्ट इकोनॉमिक्स। ओके सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके सर, गुड इवनिंग। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।